देख रहे हैं न्यूज एट 5। आपके साथ मैं हूं अनुया यादव। पहली तिमाही में टीसीएस के नतीजे अनुमान से खराब रहे। अप्रैल जून तिमाही में कंपनी का कंसो मुनाफा 10% से ज्यादा गिरकर 5,950 करोड़ रुपए हो गया। वहीं कंपनी की आय में मामूली गिरावट दर्ज की गई। कंपनी का एबिट मार्जिन भी उम्मीद से कम रहा और इस तिमाही में एबिट मार्जिन 25.7% से गिरकर 23.4% हो गया। बीएफएसआई सेगमेंट में भी आय में गिरावट देखने को मिली। मेरे साथ मेरे सहयोगी सुमित यहां पर ज्यादा अपडेट के लिए जुड़ गए हैं। सुमित, शुक्रिया अनुया। टीसीएस के नंबर्स में अगर ओवरऑल आंकड़े देखें तो रेवेन्यू में सुधार है, डॉलर रेवेन्यू में भी सुधार है, लेकिन मार्जिन, एबिट और मुनाफा, ये तीनों ऐसी चीजें जो कि अनुमान से कम आता दिखाई पड़ा। कुछ रिस्पाइट जरूर है इसमें वॉल्यूम फ्रंट पर 3-3.5% ग्रोथ, और जो क्लाइंट एडिशन है वो कंपनी के लिए एक अच्छा रिस्पाइट कह सकते हैं। दो जानकार मौजूद है हमारे साथ, गौरांग हैं और विकास सेठी हैं। गौरांग, आपसे, क्योंकि उस समय ये बात नहीं हो पाई थी कि अगर टीसीएस में ऑलरेडी इतनी करेक्शन देखी जा चुकी है, इन्फोसिस ऑलरेडी नेगेटिव मार्क झेल रहा है, वैल्यू वाइज ज्यादा बेटर साउंड है इन सिचुएशन। इनफैक्ट गौरांग, आपसे बातचीत करेंगे, पहले टीसीएस की मैनेजमेंट कुछ कह रही है, आपको वो सुनवाते हैं। Stable profitability except for two factors, one seasonal and one external. We reported constant currency profitability of 24.2% and currency adjusted profitability or reported INR profitability of 23.4%. The impact of currency on profitability is 80 basis points. On top of that, we have had 150 basis points as the impact of our wage increments, which we gave effective from 1st April. And this current quarter includes an impact of 450 crores coming from our wage increases. When you look at the overall demand across segments, from a geography perspective, our largest market in North America grew close to the company average at 1.7%. And from a geographical market perspective, Europe is the standout market this quarter. We have experienced broad-based growth across Europe, growing at about 5.6%. Almost every large market segment inside Europe has delivered very good growth, with Germany, Nordics, Benelux, and even France recording decent Q-on-Q growth. From a vertical industry perspective, our vertical industries across our major markets like US or rather the Americas, UK, Europe and Australia, vertical industries in that had broad-based growth. Except for BFSI and retail, all other industries in these markets grew at better than 3.5%. Some of the smaller ones like travel, hospitality, energy, resources and utilities have registered more than 7% Q-on-Q growth. BFSI itself has clocked in just about 2% growth, and retail is at about 2%. And overall, we see the vertical industry led growth as being stable across industries. We have reported 11 large deals, and if you look at the split of the deals, it's almost evenly spread against all our verticals, with most of the major verticals contributing 2 deals each out of the 11. The deal structure is also, from a geographical perspective, actually skewed towards North America. 7 out of the 11 deals came out of North America. And in North America, in terms of new customer acquisition and new deals, we are seeing a fairly strong pipeline with very strong uptake, especially in the smaller customer set. You see this reflected in our customer metrics also. Our customer portfolio continues to strengthen, with our largest set of $100 million clients increasing by 1. We today have 36 customers from whom we generate more than 100 million. But as you look down the customer pyramid, you will find that we have significant increase across all bands, and especially at the smaller levels, like at the 10 million band, we have the number of customers increasing by more than 10. So we are seeing a very broad-based expansion of our customer portfolio as we churn more and more into the new revenue streams. Talking about new revenue streams, our digital revenues contributed 18.9% of revenues this quarter, registering a growth of 7.6% Q-on-Q and 26% year-on-year from digital revenues. Today we are at a run rate of almost $3.5 billion from digital revenues. As you know, we reconstituted our service lines, and I'm glad to say that most of the new service lines are doing quite well.
our cognitive business operations grew more than 5% Q on Q. And even the newer ones like IoT is seeing significant customer traction. We have started more than 20 plus new engagements in the space of IoT. And areas like cybersecurity, which are relatively new, are growing more than double digit on a Q on Q basis. Digital transformation, digital interactive also continues to gain a lot of traction. We signed more than 2 multi-million-dollar deals, one in the energy sector and one in insurance in the digital interactive space. Our Ignio platform continues to attract good attention, so automation is doing well. We have 7 new customers in Ignio, with the total number of customers, active customers today going to more than 30. So overall, I would say that across services and markets, it has been a fairly broad-based and even growth, and gives us confidence in the way the market is panning out within an overall challenging environment. From our people perspective, we continue to add talent and invest in our talent, with our digital training academy now touching more than 215,000 people, and our digital skill sets rapidly building up to fuel the growth that we are seeing in the digital space. Our hiring continues with about 11,200 people of gross hiring. तो आप सुन रहे थे टीसीएस के सीएफओ को, उनका भी मानना है कि जो कंपनी के बीएफएसआई और रिटेल बिजनेस है वहाँ पर थोड़ा धीमापन ज़रूर रहा। 1.8% जो है वो वेज हाइक का इम्पैक्ट कंपनी के मार्जिन्स के ऊपर रहा, और रफली 60 बेसिस पॉइंट के आसपास का करेंसी का भी एक इम्पैक्ट रहा। विकास सेठी मौजूद भी हमारे साथ। विकास, 3 पार्ट अगर 2 हिस्सों में बांट लिया जाए टीसीएस के नंबर्स को, तो ऊपर के जितने हिस्से यानी कि वॉल्यूम, रेवेन्यूज और डॉलर रेवेन्यूज, ये पार्ट तो फिर भी बेटर साइड पे देखा जा रहा है। मार्जिन, मुनाफा, एबिट ग्रोथ, ये लोअर साइड पर आई है। मान के चले कि बाजार किसको पहले रीड करेगा, वॉल्यूम ग्रोथ को या मार्जिन फ्रंट को? मुझे लगता है बाजार मार्जिन फ्रंट को ही ज्यादा अहमियत देगा, और उस लिहाज से मुझे लगता है स्टॉक में कल कम से कम 3 से 4% की गिरावट देखी जा सकती है। टीसीएस के नतीजों में बिल्कुल मार्जिन ने काफी डिसअपॉइंट किया है, जबकि थोड़ा बहुत इनको टेलविंड मिला भी होगा, जो क्रॉस करेंसी का बेनिफिट मिला होगा, क्योंकि डॉलर भी जो यूरोपियन करेंसीज के सामने कमजोर हुआ है, तो उसका बेनिफिट मिलने के बाद भी मार्जिन के फ्रंट पे डिसअपॉइंटिंग मार्जिन है। तो मुझे लगता है स्टॉक में कल कम से कम 3% की गिरावट बिल्कुल देखी जानी चाहिए। जी, इन्फोसिस और टीसीएस, इन दोनों में आप क्या चुनेंगे? इन्फोसिस 15 के मल्टीपल पर, टीसीएस 18 के मल्टीपल पर। वॉल्यूम ग्रोथ इन्फोसिस की गिरने का अनुमान था, टीसीएस की बढ़ के आ गई है। मार्जिन में अगर कहीं इन्फोसिस बेटर नंबर दे देता है तो आपका आंकड़ा किसकी तरफ ज्यादा, आपका रुझान किस तरफ ज्यादा होगा? बिल्कुल, मैं इन्फोसिस के नतीजों पे पॉजिटिव हूं। मुझे लगता है इन्फोसिस इस बार पॉजिटिवली सरप्राइज कर सकता है। वहां पे मुझे लगता है एक तो डॉलर रेवेन्यू जो है वहां पे भी बेटर देन मार्केट एस्टिमेट्स आना चाहिए, और जो सबसे खास बात रहेगी वो मार्जिन के फ्रंट पे रहनी चाहिए। एबिटा मार्जिन मुझे लगता है जो बाजार उम्मीद कर रहा है उससे इन्फोसिस उसको बीट करना चाहिए। तो मैं इन्फोसिस पे पॉजिटिव हूं, टीसीएस पे नेगेटिव हूं, और मुझे लगता है कल इन्फोसिस में। और दूसरा एक और ट्रिगर, वो जो बाईबैक का काफी दिनों से इंतजार है, उसके फ्रंट पे भी मैनेजमेंट का क्या कहना रहता है, उस पर भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अगर वो भी आता है तो डेफिनेटली इन्फोसिस में कल एक अच्छी तेजी बन सकती है। ठीक है विकास, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुमित, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बाजार की बात कर लेते हैं। ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद ने बाजार को आज पंख लगा दिए। कल रिटेल महंगाई दर में जबरदस्त गिरावट के बाद अर्थशास्त्रियों और खुद चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अरविंद सुब्रमण्यम ने इस बात को माना कि आरबीआई अगर रेट अब नहीं घटाएगा तो आखिर कब घटाएगा। रेट कट की उम्मीद के चलते आज पूरे दिन बाजार में जबरदस्त खरीदारी रही। सेंसेक्स पहली बार 32,000 के पार बंद हुआ। निफ्टी भी 9900 के इर्द गिर्द मंडराता रहा। आज का दिन बाजार के लिए तमाम रिकॉर्ड्स के लिए याद किया जाएगा। सेंसेक्स ने 31,000 से 32,000 की ऊंचाई सिर्फ 9 सेशन में हासिल की, जबकि इन्हीं 9 सेशन में निफ्टी 9600 से 9900 के करीब पहुंचा, जबकि 9800 से 9900 सिर्फ 2 सेशन में पहुंचा। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स ने भी नया रिकॉर्ड स्तर बनाया। आज की बात करें तो सेंसेक्स 233 और निफ्टी 76 अंक की बढ़त के साथ बंद हुए। बाजार की तेजी में सबसे बड़ा योगदान एफएमसीजी, कैपिटल गुड्स और बैंकिंग शेयरों का रहा। तेल गैस को छोड़कर बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स हरे निशान में बंद हुए। गुजरात हाईकोर्ट में आज भी एसआर स्टील मामले पर सुनवाई
जो चल रही थी वो कल भी जारी रहेगी। आज की सुनवाई में दोनों पक्षों में तीखी बहस हुई। आरबीआई ने कोर्ट में कहा है कि एसआर स्टील के साथ किसी भी तरह का अन्याय या अपमानित करने के लिए कुछ नहीं किया गया है। आरबीआई ने कहा कि 22, 23 और 27 जून की बैठक के बाद एसबीआई को चिट्ठी लिखी गई जिसमें साफ साफ इस बात का जिक्र था कि एसआर स्टील पर आईबीसी के तहत कार्रवाई होनी है। कंपनी का यह कहना है कि उन्हें इस बारे में पता नहीं, गलत है। एसआर स्टील को इस मामले में राहत नहीं मिलनी चाहिए। इसके जवाब में एसआर स्टील ने कहा कि एसबीआई और स्टैंडर्ड चार्ट अकेले एनसीएलटी के तहत कार्रवाई कैसे कर सकते हैं जबकि बाकी बैंक्स एनसीएलटी नहीं गए। एसआर स्टील ने आरबीआई पर यह भी आरोप लगाया कि आईबीसी में भेजे जाने का इतना बड़ा फैसला प्रेस रिलीज के जरिए कैसे कर सकता है। एसआर ऑयल और रूस की तेल कंपनी रोजनेफ्ट डील पर अंतिम दस्तखत 20 से 22 जुलाई के बीच हो सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि दोनों पक्षों के बीच डील को लेकर हस्ताक्षर मॉरिशस में हो सकते हैं। करीब 1300 करोड़ डॉलर की ये डील अभी तक एलआईसी की मंजूरी को लेकर अटकी हुई थी। ये मंजूरी इसी महीने मिल चुकी है। सूत्रों के मुताबिक कंपनी पर एलआईसी का 3200 करोड़ रुपए का कर्ज है। कंपनी ने कुछ लोन चुका दिए हैं। करीब 1200 करोड़ रुपए अब भी बाकी हैं। इस डील से निवेशकों को क्या मिलेगा आपको ये बता देते हैं। अगर ये डील हो जाती है तब एसआर ऑयल के निवेशकों के लिए बायबैक ऑफर अगले महीने आ सकता है। रोजनेफ्ट वाले रेट पर ही निवेशकों से बायबैक ऑफर होगा। मतलब डीलिस्टिंग और डील प्राइस का अंतर निवेशकों को मिलेगा। एसईएस के मुताबिक डील के हिसाब से प्राइस 357 से 388 रुपए प्रति शेयर हो सकता है जबकि एसआर ऑयल का डीलिस्टिंग प्राइस 262 रुपए प्रति शेयर तय हुआ था। मतलब निवेशकों को 94 रुपए से 125 रुपए प्रति शेयर तक का फायदा मिलना तय है। 2 अगस्त को होने वाली आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की समीक्षा में ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद बढ़ गई है। रिटेल महंगाई दर रिकॉर्ड लो स्तर पर है जबकि इंडस्ट्रियल ग्रोथ की रफ्तार थम गई है। ऐसे में इकोनॉमी को नई रफ्तार देने के लिए आरबीआई के पास ब्याज दरों में कटौती करने का इससे अच्छा मौका नहीं है। सरकार ने भी आरबीआई को रेट कटौती करने के संकेत दे दिए हैं। सरकार की हमेशा इच्छा रहेगी और आज तो मुद्रास्फीति वैसे भी नियंत्रण में है, प्राइस राइज कंट्रोल में है, इसलिए मेरी उम्मीद और बड़ी रहेगी, लेकिन इसका अधिकार आरबीआई को है। इंडस्ट्री और आम आदमी के साथ साथ देश के वित्त मंत्री अरुण जेटली को भी ब्याज दरों में कटौती का इंतजार है, लेकिन ब्याज दरें घटाने पर अंतिम फैसला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को करना है। वित्त मंत्री की माने तो महंगाई दर कंट्रोल में है और आरबीआई के पास ब्याज दरें घटाने की पूरी गुंजाइश है। हाल ही में जारी महंगाई दर के आंकड़े भी इसी ओर इशारा कर रहे हैं। जून में रिटेल महंगाई दर 2.18% से घटकर 1.5% हो गई है, जो आरबीआई के अनुमान से भी काफी कम है। आरबीआई ने मौजूदा वित्त वर्ष की पहली छमाही में महंगाई दर 2 से 3.5% के बीच रहने का अनुमान जताया था। हालांकि आरबीआई ने कहा था कि वो जीएसटी के महंगाई पर पड़ने वाले असर पर नजर रखेगा। इस बार बादल भी जमकर बरस रहे हैं, लिहाजा खेती के मोर्चे पर भी अच्छी खबर मिलने की उम्मीद है। बम्पर पैदावार हुई तो महंगाई दर कंट्रोल में रह सकती है। इतना ही नहीं, मई में इंडस्ट्रियल ग्रोथ की रफ्तार भी थम गई है। मई में आईआईपी ग्रोथ में जबरदस्त गिरावट आई है और ये 3.1% से घटकर 1.7% हो गई है। यानी इंडस्ट्री की रफ्तार बढ़ाने के लिए भी आरबीआई का ब्याज दरें घटाना जरूरी हो गया है। सरकार ने भी आरबीआई को ब्याज दरें घटाने के संकेत दे दिए हैं। Clearly, this low number and what it implies about underlying price pressures, as well as the latest data on the IIP, is something that I am sure all policymakers will reflect upon very, very carefully. रेट कट की उम्मीद देखते हुए शेयर बाजार भी नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। बैंकर्स भी उम्मीद जता रहे हैं कि 2 अगस्त को होने वाली मॉनेटरी पॉलिसी की समीक्षा में आरबीआई ब्याज दरों में कम से कम 0.25% की कटौती कर सकता है। See, the inflation number this time is very low, as you see yesterday. So that clearly gives the expectation that rate cut possibility increases quite a lot. कि अभी तो फिलहाल 25 बेसिस पॉइंट होगा, लेकिन आगे चलते अगर इन्फ्लेशन डेटा फेवरेबल रहते हैं तो और रेट कट का गुंजाइश भी हो सकते हैं। लेकिन ये अभी फिलहाल तो ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है कि 25 बेसिस पॉइंट से ज्यादा रेट कट होने का। जनवरी 2015 से लेकर अब तक आरबीआई रेपो रेट में 0.25% की कटौती कर चुका है, लेकिन बैंकों ने इसके मुकाबले ब्याज दरों में काफी कम कटौती की है।
आरबीआई ने भी महंगाई का हवाला देकर पिछली कुछ समीक्षाओं में दरें नहीं घटाई हैं, लेकिन अब माहौल बदल गया है। अगर इकोनॉमी की रफ्तार बढ़ानी है तो आरबीआई के पास रेट कट करने के लिए पूरा मौका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को 20 लाख रुपए तक की ग्रेच्युटी को टैक्स फ्री करने वाला बिल संसद के मॉनसून सत्र में पेश किया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक श्रम मंत्रालय ने इसे लेकर कैबिनेट नोट तैयार कर लिया है और इसे अगले हफ्ते कैबिनेट की बैठक में पेश किया जा सकता है। अभी प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों को मिलने वाली 10 लाख रुपए तक की ग्रेच्युटी टैक्स फ्री होती है। बिल के पास हो जाने के बाद 20 लाख रुपए तक की ग्रेच्युटी टैक्स फ्री हो जाएगी। एक ही संस्थान में जब आप कम से कम 5 साल की नौकरी पूरी करते हैं तब कर्मचारी ग्रेच्युटी का हकदार होता है। कर्मचारी को उसकी सर्विस के हर साल में 15 दिनों की सैलरी ग्रेच्युटी के तौर पर दी जाती है। हालांकि ये नियम ऐसे संस्थानों पर लागू नहीं होता जहां कर्मचारियों की संख्या 10 से कम हो। कोयला घोटाले के आरोपी नवीन जिंदल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका मिला। कोर्ट ने आरोपियों को निचली अदालत के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाने पर रोक लगा दी है। कोयला घोटाले के आरोपी नवीन जिंदल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि कोयला घोटाले में नवीन जिंदल समेत कोई भी आरोपी ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद अब सभी आरोपियों को सीधे सुप्रीम कोर्ट में ही अपील करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश आरोपी नवीन जिंदल समेत दूसरे आरोपियों के लिए भी बड़ा झटका है, जो निचली अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देकर मामले को लंबा खींचने की कोशिश करते हैं। इससे पहले 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने जिंदल पावर लिमिटेड मामले में जांच की जानकारी नहीं देने पर सीबीआई को फटकार लगाई थी। कोर्ट ने सीबीआई को 21 अगस्त को जांच की पूरी जानकारी कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया। साथ ही घोटाले की जांच से जुड़े एसआईटी के डीआईजी का तबादला करने पर भी सीबीआई को चेतावनी दी और कहा कि कोर्ट को जानकारी दिए बिना आगे से ऐसा ना हो। कोयला घोटाला मामले में आरोपी नवीन जिंदल पर 2 मामले चल रहे हैं। पहला मामला मध्य प्रदेश के ओटर नॉर्थ कोल ब्लॉक में आपराधिक साजिश का है। दूसरा मामला झारखंड के अमरकोंडा मुर्गादंगल कोल ब्लॉक का है। और डेल ने दुनिया का पहला वायरलेस चार्जिंग लैपटॉप लॉन्च कर दिया है, जिसे कंपनी ने डेल लैटिट्यूड 7285 का नाम दिया है। ये 2-in-1 लैपटॉप वायरलेस चार्जिंग कीबोर्ड और चार्जिंग मैट के साथ लॉन्च किया गया है। ये हाइब्रिड लैपटॉप अमेरिका में $1199 में उपलब्ध है, यानी कि भारतीय कीमत के हिसाब से करीब 77,000 रुपए। हालांकि इसमें वायरलेस चार्जिंग कीबोर्ड या चार्जिंग मैट शामिल नहीं है, लेकिन इसके टॉप मॉडल की कीमत 1,15,000 रुपए रखी गई है, जिसमें सारे टेक्निकल फीचर्स शामिल हैं। डेल लैटिट्यूड 7285 में कीबोर्ड और टैबलेट दोनों में ही अलग अलग बैटरी है। मुख्य रूप से कीबोर्ड टैबलेट के लिए वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करता है और टैबलेट को चार्ज करने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर आप टैबलेट को कीबोर्ड पर रखें तो चार्जिंग मैट पहले टैबलेट को चार्ज करेगा, उसके बाद कीबोर्ड को। इस लैपटॉप में 8 GB और 16 GB रैम के साथ इंटेल Kaby Lake चिप दिया गया है और इस लैपटॉप की इंटरनल स्टोरेज 512 GB की है और इसे माइक्रो कार्ड की सहायता से बढ़ाया भी जा सकता है। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार कम लागत में प्रदूषण मुक्त टेक्नोलॉजी वाले वाहनों को बढ़ावा देने पर काम कर रही है और इसके लिए विदेश में इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी की स्टडी भी की जा रही है। जल्द ही दिल्ली मुंबई के बीच इलेक्ट्रिक कॉरिडोर बनाने पर काम होगा। एलएनजी के बाद अब मीथनॉल से चलने वाले वाहनों को बढ़ावा दिया जाएगा। जीएसटी लागू होने से ट्रकों की बिना रुकावट आवाजाही बढ़ी है, जिससे प्रदूषण कम होगा। सरकार कम लागत में प्रदूषण मुक्त ट्रांसपोर्ट मुहैया कराने पर काम कर रही है और इसके लिए देश में विकसित टेक्नोलॉजी को प्राथमिकता दी जाएगी। इसमें जो सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस है इंटरनेशनली, उनको हम स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। हम टेक्नोलॉजी में रिफॉर्म करने के लिए तैयार हैं और आउट ऑफ बॉक्स सोचकर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव और पोल्यूशन फ्री ऐसी जो भी टेक्नोलॉजी होगी और जो इंडिजिनस होगी उसको प्रायोरिटी देना, ये हमारी सरकार की नीति है। स्कोडा ने अपनी लोकप्रिय कार ऑक्टेविया का फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च कर दिया है। इस कार की एक शोरूम कीमत 15,49,000 रुपए से 22,89,000 रुपए के बीच है। भारत में इस कार का मुकाबला टोयोटा कोरोला ऑल्टिस और हुंडई इलेंट्रा से होगा। स्कोडा ने ऑक्टेविया को रिफ्रेश लुक में पेश किया है। इसके फ्रंट में नए हेडलैम्प, फॉग लैम्प, नए बम्पर और ग्रिल दिए गए हैं। कार को स्पोर्टी लुक देने के लिए 16 इंच के अलॉय व्हील्स भी दिए गए हैं। ये कार पूरे देश में एक ही कीमत पर मिलेगी। स्कोडा इस साल 4 गाड़ियां लॉन्च करेगी। स्कोडा पिछले 18 महीनों की अगर बात करें तो सुपर्ब और रैपिड को आप एक नए अंदाज में देख चुके हैं। अब जो पोर्टफोलियो में तीसरी गाड़ी बची है वो है ऑक्टाविया।
4 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है जब इसको पहली बार मार्केट में उतारा गया था। अब बदलाव शायद बेहद ज़रूरी था। बदलावों की बात कर रहे हैं। सबसे बड़ा बदलाव जो आपको नजर आएगा वो है इसके हेडलाइट्स में। हेडलाइट को 2 अलग अलग हिस्सों में बांट दिया गया, लो बीम और हाई बीम के लिए। नीचे एलईडी की स्ट्रिप दी गई है। जो अंदर वाला हिस्सा है वो हाई बीम के लिए, बाहर वाला हिस्सा जो है वो लो बीम के लिए। हल्का सा आपको ग्रिल में मिरर फिनिश दिया गया है। एडेप्टिव एलईडी हेडलाइट्स एनर्जी सेव करती हैं, जो कि लंबी अवधि में फायदेमंद हो सकती है। इसके अलावा कार की विड्थ को बढ़ाया गया है, जिसका असर हुड पर भी दिखता है। रियर पर लगे एलईडी टेल लैंप भी कार को एक प्रीमियम अपील देते हैं। सबसे बड़ा बदलाव है दैट इज दिस टच स्क्रीन। हम रोज नई नई गाड़ियां चलाते हैं, लेकिन यकीन मानिए इसका टच स्क्रीन बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है। फॉन्ट्स आर एब्सोल्युटली क्लियर एंड इट्स अ ट्रीट टू हैंडल दिस टच स्क्रीन। टॉप एंड स्टाइल प्लस ट्रिम में आपको एक ऐप भी मिलता है जो आप अपने स्मार्टफोन में इंस्टॉल कर इंफोटेनमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। इट्स अ वेरी कंफर्टेबल एंड अ वेरी नाइस कार टू ड्राइव। आप सोचिए कि अच्छा खासा वेट है इस गाड़ी का, लेकिन उस वेट के बावजूद इस गाड़ी के इंजन का कमाल ये है जो कि इतनी स्मूथली ये गाड़ी अपने आप को खींचती है। सस्पेंशन सेटअप में कोई बदलाव नहीं किया गया है। 1.8 PSI में मल्टीलिंक इंडिपेंडेंट रियर सस्पेंशन सेटअप का इस्तेमाल किया गया है, जो कि देता है बेहतर राइड क्वालिटी। लेकिन हमें जिस फीचर ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया वो है ऑटो पार्किंग असिस्ट। इस फीचर के एक्टिवेट होते ही कार स्टीयरिंग कंट्रोल खुद करती है और केवल ब्रेकिंग की मदद से गाड़ी खुद ब खुद पार्किंग में स्लॉट हो जाती है। स्केरी इन द बिगनिंग बट इंटरेस्टिंग। और भारत की सबसे बड़ी ई कॉमर्स डील के लिए अभी भी बातचीत जारी है। स्नैपडील को खरीदने के लिए फ्लिपकार्ट ऑफर बढ़ाकर 90 से 95 करोड़ डॉलर कर सकती है। ये डील अगले हफ्ते तक पूरी हो सकती है। स्नैपडील ने फ्लिपकार्ट का 85 करोड़ डॉलर का ऑफर ठुकरा दिया था। स्नैपडील के बोर्ड को ये ऑफर काफी कम लगा था। फ्लिपकार्ट का नया ऑफर स्नैपडील की डिमांड के काफी करीब है। स्नैपडील ने 100 करोड़ डॉलर की डिमांड की थी। चीन ने डोकलाम के बाद अब कश्मीर राग छेड़ना शुरू किया है। चीन ने कहा कि कश्मीर के मुद्दे पर वो भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने को तैयार है। चीन ने एक बार फिर कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते सुधारने और कश्मीर के मसले पर रचनात्मक भूमिका निभाने के लिए वो तैयार है। चीन के विदेश मंत्रालय की ओर से मध्यस्थता की पेशकश की गई है। चीन के प्रवक्ता के मुताबिक भारत और पाकिस्तान दक्षिण एशिया के अहम देश हैं, लेकिन कश्मीर के हालात ने अंतर्राष्ट्रीय तबके का ध्यान खींचा है। चीन इस बात की उम्मीद करता है कि दोनों पक्ष इस क्षेत्र की शांति और स्थिरता के लिए काम करेंगे। चीन भारत पाक के बीच रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए एक रोल अदा करने को तैयार है। भारत ने हमेशा ही इस बात को कहा है कि कश्मीर एक द्विपक्षीय मसला है और इसमें किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता का कोई सवाल ही नहीं उठता। 3 महीने के अंदर ये दूसरी बार है जब चीन ने कश्मीर मुद्दे पर मध्यस्थता की बात कही है। न्यूज़@5 में मेरे साथ बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।